Great. Okay, so the topic of discussion is tough times make you, tough time makes you tough in life. Sorry, ma'am. Tough time makes you tough in life. Clear with the topic? It's a Yes, very ma'am. and a generic one. अब इसमें डायमेंशन सोचना, कुछ एग्जांपल्स देखना कि क्या सच में जो हमें टफ टाइम होता है वो चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करता है, कैसे करता है, whatever your take is in. Okay, you have 2 minutes to think on it, and your time Ma'am, starts. can you repeat the topic once Yeah, again? tough time, tough time makes you, tough time Makes makes you. you tough in life, stronger in life. मतलब इसको जिस तरह से आप ले सकते हो. Okay, ma'am. टफ टाइम मेक्स यू टफ इन लाइफ, और टफ का मतलब ये होता है लाइक आई गिव यू सम ऑफ द फीडबैक, आप क्या क्या चीजें बोल सकते हो इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो बेटर फ्यूचर के लिए, बिकॉज दीज डेज देयर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस यू हैव टू फेस इन एवरीथिंग. यू कैन नॉट बी इवन इन जॉब्स, इवन इन नॉर्मल लाइफस्टाइल, you have to face the competition. So you should be prepared for the worst. Like your future will never be a positive, or you can say normal one. एंड ये आपको स्ट्रॉन्ग इमोशनली भी बिल्डअप करता है. समटाइम्स जैसे ना वंस यू मीट विद सम काइंड ऑफ अ ब्रेकअप और सम काइंड ऑफ अ फेलियर इन योर लाइफ, यू गेट स्ट्रॉन्गर, यू गेट मोटिवेटेड. ओके, आई हैव met a failure and now I won't repeat such mistakes again in my life. That is, you can say, get stronger emotional constraints also, and you can even tell how you can build this thing in the children who are coming, because parents are, they take them as a very soul people. They you can say वो अपने बच्चों की परवरिश बहुत सॉफ्टली करते हैं, and they are not prepared for the tough future. So even if that is a negative aspect, so discuss as much things you can, and good dimensions of it, because it requires lots of brainstorming. It's 2:15 by my side. I'll start at approximately 2:18 or 2:17. Okay, go ahead, write your points.
Okay, I think sufficient time was given. Who wants to go for the introduction now? Okay, Shivam can start, and who wants to conclude? Crucial, go for the conclusion. Okay, Chalo, it's fine. My name is, hello everyone, good afternoon. My name is Shivam. Now my topic is tough time makes you tough in life. I mean, in my point of view, in every person individual in at any time of interval, he faces a very tough time. Basically, tough time makes you stronger day by day. Actually, without any tough time, you can get your update version in your life. Like we can give an example of our CMD of SJVN, Nandlal Sarma ji. He actually belongs to the farmer family. He's not such a developed family, and he goes to school 15 kilometer daily on one side and come back to 15 kilometer daily on other side, totally 30 kilometer. Basically, he travel daily by foot, and after that, today he is a very reputed organization CMD. So basically, in my point of view, so every person goes to through his tough time, and he get his latest version of life. That's it. Good afternoon, everyone. I support Shivam that tough times makes you stronger. Like there are a proverb, necessity is the mother of all invention. And recently we had seen the COVID pandemic. There are very challenges, and we learned that in tough times we face challenges, and it makes us stronger emotionally, mentally, and in different perspective. We had knowledge, we had educational knowledge, and we definitely use that knowledge in different domains. And I think tough times makes us stronger in life. Yes, to handle tough time, we have to be patient, we have to be calm under pressure, we have to be positive for the future, and that kind of skill develops during tough times, and so it will help you in the future. So I think tough times definitely makes people stronger in their life. As Alok said that in COVID-19, tough time also gives an challenges develop some to develop मतलब टेक्नोलॉजी को इनहेंस करने का भी वो मौका मिलता है. अब जैसे कोविड-19 में बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इन्वेंशन हुआ. अगर टफ टाइम में मतलब कि अगर चैलेंज के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी आती है चीजों को सीखने की, नए चीज को डेवलप करने का, तो इससे Yes, Rahul, I want to add on to that. Tough time अगर किसी के साथ हुआ तो अगर हम अपना ही एग्जांपल ले लें, सभी का हम सबने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, राइट? तो वो टफ टाइम रहा है, बट उसका आउटकम क्या होगा? हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल इंप्रूव होगी. अब देखें तो कि प्रेशर बिल्डअप अगर हो रहा है तो हाउ वी कैन हैंडल दैट प्रेशर. सो यस, टफ टाइम कैन आल्सो बी in this form of outcome there. Yes. I would like to say that tough time make us better or stronger in our life. Just tough time grade the person first thing, and under pressure and stress, we still we have to be motivated and face the time and situation and keep ourselves emotionally stable. So these things we can learn in the tough time. And in this situation, yes, as all you guys said about the COVID situation, yes, that give us opportunity to think about the another option also. Because when life is smooth, we don't think about another thing. We just enjoy the life and live. But in tough time, we can see we change our viewpoint. When a person into the tough time, first they think how they will handle, they will manage. When the time pass, the tough time, they will understand how much that time had learned and how that that thing help them in the future.
as we are students, we are giving different kind of exam. So we may fail in certain exam or certain interview. So that will be a tough situation for you and your family. So handling this kind of situation, and you can also learn from our great leaders or may scientists like Dr. APJ Abdul Kalam, or you can say MS Dhoni. Those people also passed from this tough time. So you don't have to panic. You have to be positive, and you have to find what was the fault in us, and we can find the solution in the tough time. This will also help us in future. The one thing is that how to tackle the tough time. Basically, this is the main point. Yes, you have to find, or you can take help from any psychologist or anyone in your neighbor or any your senior. You can take help, or Your you can parents. find your own also. Your parents, obviously. Your parents Your also, mentor your also. teachers. We can also have mentors. Yes, mentors. Because most of the people are just distracted from his way when they are in a struggling phase. But in the final conclusion, we again we can say that you should manage and how to deal the pressure under pressure, how to calm and compose, and finally take a good decision in any organization in advancement and in As we achievement. know that tough time is a very critical situation, that it makes me very stronger in life. It gives about every experience, and it learns patience and patience, calm, and in every situation, like every our like in our in like our freedom fighters, Bhagat Singh and Sardar Vallabhbhai Patel. Everyone saw that tough time freedom in freedom time. So Yes, Ayush and Aruna, both they give the example. So what is the common in all that is that कि उन लोगों ने हार नहीं मानी थी. अगर अपना टफ टाइम चल रहा है तो अपने को हार नहीं मानना. बेसिकली आप लोगों ने जितने भी एग्जांपल दिए, एपीजे अब्दुल कलाम यानी धोनी, फिर अदर फ्रीडम फाइटर्स, तो वो सब हार नहीं माना था उन लोगों ने. सो फ्रॉम ऑल दैट वी कैन ऑल्सो गेट टू नो दैट अगर हम डटे रहेंगे देन वी कैन गेट द पॉजिटिव आउटकम फ्रॉम दैट. डेफिनेटली. अगर मान लीजिए हमें बॉडी बनाना है तो हमें जिम रेगुलरली डिसिप्लिन्ड वे में जाना पड़ेगा. तो ये भी एक टफ टाइम होता है. यू हैव टू be disciplined at least 6 months, and after that result will come. So you have to be patient. मतलब बेसिकली तुम्हें अपने जो इजी जोन है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर. यस यस. And for in parenting, we can say that the parents are bring their children in a very difficult way. This is somewhere making children weak and emotionally, and as well as physically also, because their children suffer a bit. They want to do all the things. I think they should also provide the parenting. They also teach about the how to lead a tough life, and how we can manage things in a tough life situation. Sometimes parents also keep concerned about this, about their parenting. Because upbringing also affects the future of any student or any children. The students of this generation is the future of the country also. So these things should be taught by their parents only in their home. और इसमें मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि सोसाइटी भी कभी कभी टफ टाइम क्रिएट कर देती है. जैसे कोई स्टूडेंट है, वो तैयारी कर रहा है, वो एग्जाम में फेल हो गया, तो उन्हें सोसाइटी ऐसे पोर्ट्रे करता है जैसे कि ये फेलियर है. तो इस तरह के भी चीज में कोई हमें ध्यान देना पड़ेगा, और हमें सोसाइटी स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि किस तरह से सोसाइटी काम करती है. तो इसके लिए हम अपने टीचर, अपने गार्जियन से लगातार सुझाव ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये सब जो हमारा टफ टाइम ये क्यों आ रहा है और इसका क्या स्ट्रक्चर है. तो ये भी हमें फ्यूचर में काम देगा, मेरा ये मानना है.
यस आई Yeah, सो yeah. उसके लिए मैं बेस्ट agree with you. एग्जांपल अपन सुधा मूर्ति का देंगे। अगर वो एक फर्स्ट लेडी थी अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज में, राइट, उसके टाइम पे, जैसे अभी आपने बोला कि सोसाइटी क्रिएट करती है, सो शी आल्सो फेस वेरी डिफिकल्टी ड्यूरिंग हर टाइम। सो yes, you are right that Yes, society yes. need When to we adapt talk this. about the facing tough times, you need not to think about what other people think. You have to just think about us, how we can develop the skills and abilities to face the situation. As when we talk about this facing the tough times, the society cannot do anything. Just you have Yeah, to yeah. work individually. Actually, Sarah, you are If we right think, because yes. if we think about the other, what they are thinking and what they are saying, we can think that much stronger. And Yeah. the same thing will repeat again. तो I would बेसिकली like हमें to अपने काम पे फोकस करते हुए सोसाइटी को जो है ध्यान में ना रखते हुए, तो बेसिकली वो हमें मोटिवेट करती हैं, कभी कभी डिमोटिवेट भी करती हैं। तो जो जो मतलब मेन थिंग है वो ये है कि तुम्हारा गोल, तुम्हारा अचीवमेंट, उस सब के बीच जो तुम्हारा स्ट्रगल है और तुम्हारा जो बेसिकली जो डिमोटिवेशन फेस है, वही तुम्हें स्ट्रॉन्गर डे बाय डे करेगा। और टफ टाइम भी बेसिकली वही होता है। बेसिकली वो तो जो टफ टाइम में जो पेशेंस के साथ जो अपना काम कर लेगा वो सक्सेस पा लेगा। वही सक्सेस भी बस बेसिकली। टफ टाइम एक तरह से चैलेंज भी है, तो एक तरह से तुम्हारे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह Yes. भी हम लोग उसको ले सकते हैं टफ टाइम को। और क्योंकि टफ अगर टाइम हम कभी हमें ये भी बता सकता है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे थे, क्योंकि अगर आपने गलत रास्ता चुन लिया जल्दबाजी में, तो हो सकता है आप टफ टाइम क्रिएट कर लो, तो वो हाँ टफ टाइम आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। आपको पता चल जाएगा कि अरे ये तो गलत रास्ता था, इस पे नहीं जाना था और जल्दबाजी में मैं चला गया। तो टफ टाइम कभी कभी आपके लिए सही भी हो सकता है, आपको किसी गलत चीज से रोक ले पहले ही। और I तुम्हें would टफ like टाइम to में add तुम्हें one point. That is also a chance. Tough time make people do the easy things and they bad things with easily. So it is also I'm agree with you. Tough time make people some that kind of person they don't anything in their life. Just criticize the situation and let the rest of the life they live like anything. और टफ टाइम में मैं बेसिकली एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मेरा खुद का एक एग्जांपल है। मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उस टाइम 2018 तक मैं बेसिकली पास आउट हूँ। तो वहां से मेरे उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था। स्टार्टिंग के 2-3 साल मतलब कोविड को हटा के, तो उसके बाद मेरी फैमिली में जो इंसिडेंट आए, मेरी मदर जो थी वो एक्सपायर हुई थी। तो उसके बाद इतना टफ टाइम था कि शायद ही मैं अपने आप को संभाल पाया। बट उसके बाद फिर अपने आप को मोटिवेट रखा। उसके बाद एग्जाम भी क्वालिफाई हुए हैं और 2-3 आयोग में भी बेसिकली अपीयर हुआ हूँ। बट यही है कि मतलब अपने आप को हर सिचुएशन में मैनेज करने की एक जो ताकत है बेसिकली वो फैमिली से ही आती है और टाइम ही सिखाता है। और वो फाइनली कहते हैं ना, टाइम हील्स एवरीथिंग। तो मेरा मानना ये है कि सबको लाइफ में कभी ना कभी टफ टाइम से निकलना पड़ता है और वो निकलते भी हैं। I would like to add बिल्कुल। one point. Like tough times gives us opportunity to think out of box, like we have seen in last few years. Some unicorn companies came in picture, and different startups came, and they have COVID, made just because of just in COVID times also, and earlier also. Many startups came and they were very humble backgrounds, their founders, and these are different scenario that it prevails us to think about on different directions. Yes, we It can also also take changes the the example perception of about the situation also. Tough time also changes the perception of a person. Yes, Sometimes yes. मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जब कोई change the जब कोई perception of life of every person. So tough time it is not tough, but it actually makes me very strong. Like in tough time, we have learned a lot things like how to deal with life and how to deal with person and how to be and how to be calm in every situation. So tough time is a very good thing, is a good thing also. Aruna, I want to say how tough time is a good thing, right? Let's think about the current railway minister, right?
Odisha train accident. How can we say that right now tough time is good for him right now? Sorry. Definitely, it will help him for the better managing the railway for upcoming days. Yeah. It will Upgradation teach him system actually Yeah. close to हमारे paying system में attention जो on different things. Sometimes teachers lots of school. And one important thing also, one thing situation sometimes it makes the situation psychologically tough. So we should okay, this is the situation, we will find a different way. We will see what can we do in the situation. Be patient and be calm is not easy in that time, but it takes time. But you can manage things and to know how to handle things in future also. Because time is not always consistent. It always changes. And being motivated is an important thing during the tough times, which make us stronger. मेरा एक और भी मानना है कि जब व्यक्ति टफ टाइम में आता है तो उसे हटाने का कोशिश करता है। इसके लिए वो गुरु के पास जाता है या जो हमारी किताबें हैं जैसे श्रीमद् भगवत गीता उसे पढ़ने का कोशिश करता है और ये सारी चीजें उसे फ्यूचर में बिल्कुल हेल्प करती हैं। तो हमें मेरा यही मानना है कि टफ टाइम बिल्कुल हमें अपॉर्चुनिटी देता है आगे के लिए रेडी होने का। और टफ टाइम में मुझे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, जो कि हम लोग एक अलग तरीके से सोचने का तरीका, ताकि इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे अभी जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, इनसे रेलवे वालों को बहुत ही इन फ्यूचर इस टाइप का एक्सीडेंट ना हो, उस टाइप का टेक्नोलॉजी डेवलप करने का, मतलब ये आउट ऑफ द बॉक्स, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का। As my friend Ayush said that ki tough time we learn from tough time spiritual things. We have to to spiritual things like Bhagavad Gita, Ramayana. Yes, it yes, we can learn from here a lot of things like Gita, Shri Krishna, and this type of things makes me motivated. Yeah, actually इसमें हम एक Spiritual चीज और things भी ऐड not कर only motivated you, it motivated all the people. When tough Yeah, time yeah. comes, people seek what is the way. Then that time, automatic people go to the spirituality. Yes, Generally, yes. people don't go and don't think about it. But when the tough time comes, they become spiritual. They become more religious. They become ज़्यादा वो meditation की तरफ भी ज़्यादा जाएंगे फिर Yes. वहाँ से भी। Yes. And from that time, many people we can see also in our day-to-day life, when they are facing tough time, they become spiritual, they become more religious, and it is also good for them also. Because spiritual things are base for any person. And connected to spirituality is give a peace in mind. Yes, actually, what the thing is that the person have the belief or faith in that thing, spiritual thing. So they gives me a peace, like. हम अपने देश का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब हमें आज़ादी मिली थी तो हमारा क्या हाल था, ना कुछ खाने को था, ना कुछ पैसा था। तो हमारा देश भी इस टफ टाइम से सफर किया है 30-40 साल। उसके बाद धीरे धीरे अपना देश ट्रैक पे आया और अभी हमारा देश कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये टफ टाइम हम हर जगह देख सकते हैं, आदमी में, देश में, स्टेट में, और हर चीज में हमें देखने को मिलता है कि बिल्कुल टफ टाइम किसी भी चीज के लिए उससे फ्यूचर में हेल्प ही करता है। अभी जो टफ टाइम चल रहा है बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर के लिए, यूक्रेन के लिए एक टफ टाइम है बेसिकली अभी। तो वो भी एक अपने आप को बेटर वर्जन निकालने की कोशिश करेगा वहां से। तो ये भी एक yes, they have to see why they are suffering, because what kind of mistakes they committed. Yeah, as compared to Russia, Ukraine is much lower in every aspect. So Russia is basically a huge in every aspect, like in economy, in defense, and many other sectors basically. But Ukraine, as compared to Russia, is very diminished and very low in compared to in any situation. So basically, but in my opinion,
ही मतलब उसने अपना मतलब एक बेहतर एक अपना एक एडवांस वर्जन दुनिया के सामने रखा है, जिसको कि सबने सराहा भी है बेसिकली। तो अपने टफ टाइम में उसने कभी भी एक हिम्मत नहीं हारी, इन द सिचुएशन में भी अपने आप को हमेशा वो स्टैंड में रहा। We can also take an example like the British that has ruled most of the countries in the world, but British also ruled in America also. But today we can see America has also faced the tough time and the situation. Now it is the world top economy. Yeah. But British is not a top economy, but it's a good in ruling. But it was not become a top economy of the world. But that's why they have faced the situation and and that situation make them learn lots of things. In the same situation, India and China basically, both of them are equally and at the same time become freedom independent. And now today China is in defense sector and in economy sector and in manufacturing sector. Basically, China is much ahead as compared to India. So we think, in respect to India, what we can do for our nation in this situation. So, okay. Kohli was not scoring a century from 3-4 years. So that was also a tough time, but that guy was very tough. Like his past experience came out, and then he scored century 3-4 times in a row. So we can learn from them also, like the way he managed the pressure, the kind of pressure from our country on the person was enormous. So we can also learn from Virat Kohli. Yeah. Another example, Rinku Singh also we can take from the IPL, right? Leave it. The time is up. Go for conclusion, Kushal. Okay. So yes, we had a very conclusion is basically that you should prepare for worst condition yourself, and you should take you हमेशा अपने tough time के लिए ready रहना चाहिए, और हमेशा प्रेशर को हैंडल करना। बेसिकली ये भी एक टफ टाइम से कई एक मतलब की एक पॉइंट है कि यहाँ से निकल के अपने आप को बेटर वर्जन अपने आप को निकालना। तो ये मतलब मेरा कंक्लूजन ये है कि हमेशा बी रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन एंड प्रिपेयर फॉर वर्स्ट कंडीशन। सो बेसिकली दिस इज Crucial. Go for conclusion. From all point of view, so we can conclude that one should have the patience, one should have the faith, one should also follow the spirituality, and by all of these, that if one is in the tough time, he will have the great outcome by following all these things. So thank you. Okay, now listen everyone. First, before I come to each one of you, because there are lots of mistakes you are committing right now. Okay, and there's always one conclusion, Shivam. It's already been there that one of you will conclude and start, which is us. If each individual conclusion will not be there. Okay, so it is one introduction and one conclusion. So you do not have to conclude it from your side. Till the time you tell that, yes, I want to conclude the, you can say, group discussion. Okay, then first coming to Ayush. Ayush, your topics get quite informal. The discussions like bodybuilding and all that, the topic, this is a kind of a digression you get. टफ टाइम्स का मतलब किसी ने कुछ मेंशन नहीं किया। रॉबरी, जैसे आप लेट टेस्ट अभी बता रहे थे, जिस तरह से ट्रेन कोलिजन हुई है, राइट? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट सारी, some kind of, you can say, bad covid was a tough time for each one of us, right? So tough times वो होते हैं, tough टाइप आप छोटे छोटे मत लो कि एग्जाम्स में मेरे वो होते हैं आपकी डीमोटिवेशन या कुछ आपको हो रहा है कि सोसाइटी क्या बात करेगी अगर मैं ये करूंगा, है ना? वो एक बहुत छोटा, आप कंपेयर करो। टफ टाइम्स होते हैं कि किसी की, हाँ, यू कैन से दैट इन लाइफ पुट्स अस नंबर ऑफ चैलेंजेस एंड यू हैव टू मीट दोस चैलेंजेस। द चैलेंज कैन बी एट एनी लेवल, इट कैन बी एट द स्मॉल लेवल ऑल्सो, इट कैन बी एट हाई लेवल ऑल्सो। सोसाइटी के लिए भी हो सकता है, तुम्हारे लिए भी हो सकता है। फिर उसके हेल्थ पर्सपेक्टिव, हेल्थ के बेस पे हो सकता है, वैसे कोई नेचुरल डिजास्टर के बेस पे हो सकता है, अर्थक्वेक्स एंड ऑल दैट, ठीक है, उसके बेस पे हो सकता है। कोई आप कोई कंट्री में सुनते हो कभी कोई, आई थिंक विंड फ्लो हो गया, कुछ हो गया, मतलब देयर कैन बी डिजास्टर्स एनीवेयर। कोविड वाज वन। तो आप लोग को पहले डिस्कशन करना चाहिए था कि व्हाट दिस टॉपिक एक्चुअली डिमांड्स। लाइक दिस मींस आप टफ टाइम रिपीट कर रहे हो हर एक गाना। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड बी वेरी सिंपल। टफ टाइम मेक्स अस टफ इन लाइफ, एंड टफ मींस फिजिकली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड। ये जो कुछ सेगमेंट्स है ना, इनको टारगेट करना था,
ठीक है। फिर फिजिकली, इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं? वी आर इन द स्टेट ऑफ कि जहाँ पे हम इमोशंस हैं, बहुत जल्दी रो पड़ते हैं, राइट? किसी के साथ पर कुछ बुरा हो जाए, ही हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, ही बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्ग टू मेंटेन इट आउट। किस तरह से इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है? वो अपने सारे इमोशंस को वेवर आउट कर देता है एंड देन ही बिकम्स प्रिपेयर फॉर द बेटर फ्यूचर। सेम वे आप स्पिरिचुअली कैसे अपलिफ्ट होते हो? जैसे आप छोटे छोटे एग्जांपल्स देते थे, यू गेट मोर मोटिवेटेड टू बी इन दिस काइंड ऑफ, यू कैन से, आप भगवान को ज्यादा याद करते हो, स्पिरिचुअल हो जाते हो एकदम से। तो इट इज लाइक दिस पाथ आल्सो मोटिवेट्स चाइल्ड, कि अगर आप मोटिवेट करता है बंदे को कि हाँ आप पहले कंसंट्रेट करो, आप बीच में मेडिटेशन करो ताकि आप फोकस कर पाओ वन पॉइंट पे। इवन दिस थिंग इज सीन कि वहां पे इमोशनली स्पिरिचुअली भी अपलिफ्ट आती है, ठीक है। उसके बाद ये चीजें कैसे पॉसिबल है टफ टाइम से बाहर निकलना? मोटिवेशन पॉसिबल है। इसको सेगमेंट्स पे, जैसे आप क्वेश्चन करते हो ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मेथड होता है, इंट्रोडक्शन होता है, कॉजेज ऑफ दिस थिंग, हाउ टू ओवरकम दिस थिंग, एंड देन द कंक्लूजन कम, इसी डायमेंशन में चला करो। क्यों उल्टा पुल्टा कहीं पे भी? अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आई कम टू ईच वन ऑफ यू। स्टार्टिंग वाज डन बाय, आई थिंक, वेयर इट इज, ओके, शिवम ने इंट्रोडक्शन किया था। शिवम इज देयर? Yes, ma'am. शिवम, जब आपने स्टार्ट किया ना, दैट्स अ जॉब एवरी पर्सन, मतलब इंट्रोडक्शन में ये सब चीजें नहीं मेंशन करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये चीजें मेंशन करते हैं दैट दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट दैट टफ टाइम प्रिपेयर्स अस फॉर, यू कैन से, बीइंग टफ इन द लाइफ, एंड दिस टफनेस इज सीन इन अवर, यू कैन से, इमोशनल स्ट्रेंथ। हम इमोशनली स्ट्रेंथ होती है हमारे अंदर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट्स होती है, फिजिकली भी हम अपने आप करते हैं, बेटर टेक्नोलॉजी की तरफ करते हैं। मतलब आपको डायमेंशंस देखनी है कि सारी सारी डायमेंशंस आप इंट्रोडक्शन में एक बार शॉर्ट में कवर कर दो, एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे, ठीक है, कि टफ टाइम का इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। उसके बाद आलोक ने स्टार्ट किया। आई थिंक आलोक इज नॉट देयर, बट दो ही गेव गुड पॉइंट्स इन द एंटायर डिस्कशन। आलोक वाज द वन जो सबसे अच्छे पॉइंट्स दे रहा था, एंड यू गाइस वर रिपीटेड। जैसे अब यहाँ पे आई डोंट नो, आउट ऑफ बॉक्स वाला पॉइंट पहले, सबसे पहले दिया गया था, इट वाज गिवन बाय, लेट मी चेक, हाँ इट वाज गिवन बाय आलोक। उसके बाद ये दोबारा से राहुल ने बोला था। राहुल इज देयर? राहुल ने बाद में बोला था, आफ्टर सारा टॉक्ड, आफ्टर अरुणा ने भी बोल दिया, सबने बोल दिया, एट द एंड राहुल ने दोबारा से रिपीट किया। उस टाइम पे क्यों नहीं बोला जब आलोक ने स्टार्ट किया? आपने उसको डिफरेंट बोल दिया, सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। दिस इज एक्चुअली द वे यू हैव टू अटैक एट दैट वेरी टाइम। ये आपका चेक करता है कि आप कितने अटेंटिव हो, एंड इफ यू आर नॉट, सी द रिजल्ट्स आर कि वहां पे उसका पॉइंट मैंने स्टार लगाया हुआ है कि स्टार्टिंग उसने की थी, या तो उसी पॉइंट का आप क्या करते हैं? यस, आई ट्रूली एग्री विद यू लोग दैट इट गिव्स अस अ न्यू डायमेंशन, ठीक है। जैसे ओल्ड की चीजें हैं, कुछ है, हम कैसे फॉरवर्ड लेकर उस टाइम उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देते, यू वुड हैव गॉट एन एडवांटेज ऑफ, ठीक है। इसलिए सबसे अच्छी चीज होती है सीडी में, कौन डिफरेंट डायमेंशन को स्टार्ट करता है जो नॉर्मली सभी लोग नहीं बोल रहे, या कोई किसी ने छोटे पॉइंट को स्टार्ट किया, कौन इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। दैट इज समथिंग यू नीड टू टारगेट। और आप लोग क्या करते हो, एक ही चीज को सारे, अभी फिर उसके बाद आयुष ने बोला, आयुष वाज गुड इन इट। उसके बाद राहुल यू मेंशन्ड अबाउट कोविड टेक्नोलॉजी, इट वाज गुड, दैट पॉइंट वाज गुड, जो कि आपने सबसे पहले स्टार्ट किया था कोविड के बारे में। नन ऑफ यू स्टार्टेड कि कोविड से अच्छा एग्जांपल कोई नहीं है जिसने एक्चुअल में हमें प्रिपेयर किया फॉर बेटर फ्यूचर। दैट राइट नाउ वी आर ऑलरेडी अवेयर कि अगर कोई वेव आती है, कुछ आता है, तो टेक्नोलॉजी विल टेक द कॉज, हाउ डॉक्टर्स विल टेक द कॉज, एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन दैट, ठीक है। तो वो एक चीज आ गई। उसके बाद आई थिंक क्रुशल आज पॉइंट्स इतने अच्छे नहीं थे। एक तो आई डोंट नो व्हाई यू वर स्पीकिंग लेस, यू आर वेरी, यू कैन से, अटेंटिव एंड यू स्पीक मोर ऑफ इट, तो व्हाई टुडे नॉट यू वन स्पीकिंग गुड? व्हाट्स द रीजन? कि मिल नहीं रहे थे पॉइंट्स? यस मैम, पॉइंट दिख नहीं रहा। पॉइंट्स थे बट रिपीट हो रहे थे, बट ये पहले तो बोल रहा था, बोर्ड वाला भी मैंने नोट किया है, फिर ये ट्रेन वाला भी। कोशिश करा करो कि कॉजेस क्या है, उसके बाद इसको रीजंस क्या होते हैं, किस किस चीजों को टारगेट करते हैं, कैसे इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं या हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। टफ टाइम को, आपके ऊपर टफ टाइम आएगा, कोई मोटिवेट करेगा ना आपको, हाउ टू गो थ्रू टफ टाइम, मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड। बच्चों को, जैसे सारा स्टार्टेड अ पॉइंट, इट वाज गुड, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था कि आज तक अपब्रिंगिंग आ रही है दैट इज वेरी सॉफ्ट, और उसको बहुत स्मॉल में बोलना था। यू कुड से कि बच्चों को भी बेटर, यू कैन से, प्रिपेयर करवाना चाहिए। दे शुड बी टॉट अबाउट द चैलेंजेस दे कैन फेस। कंपटीशन जैसे छोटे छोटे लेवल पे होता है, दे शुड बी मेड अवेयर दैट दे हैव टू गो थ्रू वेरी टफ चैलेंजेस, क्योंकि अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत छोटे उनको एक सोशल सर्कल पे रखते हैं, घर पे उनको बड़े प्यार से रखते हैं। जैसे बच्चा बाहर निकलेगा आफ्टर 12 हॉस्टल्स एंड ऑल दैट, रैगिंग होती है, कुछ होता है, ही इज नॉट एबल टू कोप अप, ही कमिट्स सुसाइड।
टिकटॉकर्स एंड ऑल दैट, यू हियर नंबर ऑफ रील्स बना रहे थे, कल तक ये हो रहा था, नेक्स्ट डे उनको कोई सोशल किसी ने बुली कर दी. दैट इज काइंड ऑफ यू कैन से टफ टाइम एंड दे कमिट सुसाइड बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड. ये किसी ने मेंशन नहीं किया. जो वहां पे जैसे कोई पॉइंट स्टार्ट करेगी बातें मेंशन करो ना, कैसे टफ टाइम क्यों हमें जरूरी है. नहीं प्रिपेयर्ड होगे तो बहुत इजी है, सुसाइड कर लेते हैं लोग, कुछ ये कर देते हैं, क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाइपोलर हो जाता है, कितनी चीजें होती है, वो नहीं मेंशन कर रहे हो. पॉइंट्स सारे निकलते हैं. वही बोलते हैं ना, ब्रेनस्टॉर्म करो किस किस डायमेंशन में मैं सोच सकता हूँ. मेरे ऊपर टफ टाइम आया. और अरुणा, कभी भी जब भी आप बोलते हो अपने ऊपर पर्सनल नहीं लेना, दैट आई विल गेट मोटिवेटेड, आई डू दिस. इट्स अ जेनरिक वन. ग्रुप डिस्कशन में होता है कि सभी लोगों के लिए है कि हमें क्या इसमें बेनिफिट मिलेगा. उसके बाद आई थिंक सारा योर वाज इमोशनली स्टेबल होना चाहिए. दैट वाज गुड पॉइंट व्हेन यू स्टार्टेड कि क्वेश्चन ने बोला कि कॉजेस क्या क्या है, और इट वाज ऑल फाइन एंड यू टोल्ड अबाउट इमोशनल स्टेबिलिटी. आयुष का पॉइंट अच्छा था. शिवम, अंडर प्रेशर आप होते हो तो दैट वाज आल्सो फाइन. ये जो पॉइंट था, आई थिंक हु मेंशन्ड, अरुणा का था. अरुणा, इट मेक्स मी वेरी स्ट्रांग एंड ऑल दैट, वो मेक्स मी पॉइंट ही गलत है. यू गेट वेरी, आप वेरी इनिशियल स्टेज पे एलिमिनेट हो जाओगे अगर इस तरह से जीडी को अटेम्प्ट करोगे. ओके मैम. ठीक है. उसके बाद क्रुशियल यू मेंशन कि जब हमें हार नहीं माननी चाहिए, विल फाइट फॉर इट. सी, पॉलिश योर कंटेंट. ठीक है. इट प्रिपेयर्स अस कि आप लोग को, अगर आप बोलते हो ना बीच में ही आप इंग्लिश में स्टार्ट करते हो, बीच में ही हिंदी हो जाते हो, या तो एक ही लेवल पे स्टार्ट करो. ठीक है, मिक्सचर स्टार्ट करा करो. उसमें आप क्या करते हो, कैसे ये इट प्रिपेयर्स अस फॉर अ बेटर फ्यूचर, आप सिंपल कह सकते हो. उसको चेंज करके लाइंस को चेंज करो. योर लाइंस वर नॉट गुड. आयुष, जो बॉडी बनाना, दैट्स नॉट अ टफ टाइम. नहीं बनेगी तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं खराब हो रहा हमारा, है ना. किसी की बॉडी नहीं बन रही, कोई जिम नहीं जा रहा, तो आई डोंट थिंक कोई ऐसे टफ टाइम आ जाएगा. तो बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप डिस्कशन मीन्स कि आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करनी. ठीक है. तो डोंट गो फॉर इट. इट इज ओके, एटलीस्ट यू आर पार्टिसिपेटिंग, नाइस. बट वही चीज है कि हमें पॉइंट्स बड़े कॉन्टेक्स्ट मैम एक चीज, मैम किसी को मैम इंटरप्ट कर सकते हैं. हेलो. हाँ मैम, ये मतलब अगर कोई पॉइंट कोई डिलीवर कर रहा है तो क्या हम बीच में उसको इंटरप्ट कर सकते हैं अपना पॉइंट रखने के लिए? You can cut a point, but it should be very normal that I don't support this out and I want to speak like this. कट कर रहा ना, कट का भी ये भी नहीं होना चाहिए कि बार बार कट कर रहे हो. देखो, they want to test you number of things. आप कितने अटेंटिव हो, जैसे मैंने बोला ना, जैसे किसी ने बोला आउट ऑफ बॉक्स है, आपने तभी क्यों नहीं टारगेट किया, अब 10 मिनट बाद टारगेट कर रहे हो, नो यूज ऑफ इट. ठीक है. देख लेते हैं कि कितना वो बच्चा सुन रहा था कि अपने पॉइंट को ही बना रहा था. आप लोग क्या करते हो, जीडी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या होती है, सुन ही रहे होते हो, अपना पॉइंट बना रहे होते हो, मैंने ये बोलना है, मैंने ये बोला, आपके दिमाग में ये चल रहा होता है. इस वजह से ना आप सही टाइम पे टारगेट कर पाते हो, और जो अच्छा पॉइंट होता है वो मिस कर जाते हो. कई बार बड़े अच्छे पॉइंट होते हैं और आप क्या करते हो, उस टाइम पे सपोर्ट करो ना, भूल जाओ, एक बार अपना पॉइंट देके भूल जाओ कि हाँ अब मैंने इस डिस्कशन में रहना है. या शिवम, मैम एक्चुअली मेडिटेशन करनी पड़ेगी ना, दिमाग में आ नहीं रही पॉइंट. नहीं, इट विल सी, यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म. जितना सोचोगे, मैं बोल रही हूँ ना, अभी जैसे मैंने एक टॉपिक दिया है, इसको ये नहीं कि जैसे डिस्कशन बंद की, कॉपी रख दी, उसके बाद बैठ के सोचो कि अब क्या क्या पॉइंट्स है. कि किसी ने भी कोई पॉइंट दिया, सपोज कोविड का सबसे पहले पॉइंट आया था, आयुष ने दिया था, या किसी ने भी दिया था, राहुल ने दिया था, मेरे दिमाग में सबसे पहले क्यों नहीं आया. दैट शुड बी, पॉइंट तो आ रहा था मैडम, पॉइंट तो आ रहे थे, पॉइंट तो आ रहे थे उस टाइम. you have to note it down. एक तो पहले प्रैक्टिस, एक तो वही है, सारे यू हैव गुड कॉन्फिडेंस, बट डिलीवरी में आ जाता है आपके कंटेंट अभी बहुत अच्छा पॉलिश नहीं है. You have good confidence, you have to portray it right nicely. अरुणा, कॉन्फिडेंस बहुत कम है अभी you were very, और आप बोल भी बहुत कम रहे थे. You increase your participation, क्योंकि जितना बोलोगे यहाँ पे बोल लो ज्यादा, वहां पे जाके आपसे वैसे ही नहीं बोला जाएगा अगर यहाँ पे नहीं बोल रहे हो. Yes, ma'am. ठीक है. एंड still crucial, I don't expect, I want you to be very good in it because you have practiced 2-3 sessions till now. ज्यादा कर रहे हैं. ठीक है. तो कंटेंट ये नहीं है कि जैसे कभी कोई ज्यादा कम बोल रहा है तो मैं कम ज्यादा बोल दूंगा उस टाइम पे. बी नॉर्मल, बी द वे यू आर. अपने पॉइंट्स को टारगेट करो कि मैंने किस तरह से अटेम्प्ट करना. बी द बेस्ट इन इट. ओके. आयुष, पेन पेपर मिलता है जीडी के टाइम पे? इट डिपेंड्स. यू कैन ऑनलाइन अगर सब अगर कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन, यू कैन से फील्ड टू स्ट्रीम. आप नोट कर सकते हो पॉइंट्स वहाँ पे, दे विल गिव यू द टाइम फॉर दैट. अब फ्रेम कर सकते हो, आप चाहो तो नोट कर लो उस टाइम पे. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इट मैटर्स. आई विल कंफर्म योर्स कौन सी है. ठीक है. लेटर ऑन मैम सबका जो जीडी की प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे सब एसजेवीएन वाले या कोई और भी है? एसजेवीएन गेल वाले. sometimes yeah, you are from different sectors even, so that's okay.
सी मेन मोटिव इज कि अगर आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हो, कितना टारगेट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में, योर ब्रेन शुड बी प्रिपेयर्ड। इस टाइम पे कोई टॉपिक आए मैं बोलूंगा, ठीक है। ये टफ टाइम वाला टॉपिक किसी भी तरह आ सकता है। हाउ टू ग्रो पर्सनली, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, ठीक है। व्हाट आर द डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स यू नीड टू टारगेट, तो डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स में भी आ जाएगा सोशल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, ये सारे आ जाएंगे। एक ही चीज को मैंने ये बोला है, ये सोचा करो कि मैंने इसको बहुत आउटरन में करना है, और जैसे ये जीडी क्लोज होगी उसके बाद कॉपी पे पॉइंट्स बनाओ अपने, अदरवाइज नो यूज, नहीं तो अभी के अभी खत्म हो जाएगा, कोई याद भी नहीं रहेगा। उसके बाद आई थिंक सारा जब आप पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, पेरेंट्स अपब्रिंगिंग, चिल्ड्रन सफर कर रहे हैं, मतलब कि बच्चे सफर करते हैं, तो उसको ऐसे बोलना था थोड़ा पॉलिश करके कि पेरेंट्स कीप देयर चाइल्ड इन अ वेरी सिक्योर एनवायरनमेंट, and when they're pulled out of that secure environment, they face a challenge and they go for depression, या फिर they face such things, negative things they're not able to handle। मोटिव क्या था हमारा, समझाना ना कि वो हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए तरह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी और स्ट्रेन में चले जाते हैं। इसलिए बच्चों को वेरी इनिशियल स्टेज से प्रिपेयर करवाना चाहिए, और कभी भी इतना कोजी इन्वायरमेंट मत दो कि बाद में वो अपने आप को हैंडल ना कर पाए, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ बुलिंग, आप यू गो इफ यू आर लिविंग आउटसाइड फ्रॉम योर होम, कुछ ना कुछ बुलिंग, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट, कुछ ना कुछ यू कैन से प्रॉब्लम्स डू अकर, एंड टिल द टाइम यू आर नॉट प्रिपेयर्ड यू वोंट बी एबल टू फेस देम, यू वोंट गेट स्ट्रॉन्गर फॉर इट, ठीक है। इसे बोलते हैं ना, इमोशनली जितना आपके साथ कुछ ना कुछ होता रहेगा, आप उतना वीक से अपलिफ्ट होते रहते हो। You go for any person, the person who does not have parents and all that, he already has gone through so many things। अब उसके साथ कुछ और चीज होती है, वो पहले ही प्रिपेयर, उसका मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाता है, मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाता है आपका उस टाइम पे, ठीक है। कि मेरे साथ ये चीज हो, किसी की चोरी हो जाए, कोई थेफ्ट हो जाए, आपका मेंटल लेवल स्ट्रांग हो जाएगा कि आगे से मेरे को डील कैसे करना है, मेरे को प्रिकॉशंस क्या लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये चीजें हमें प्रिपेयर करती है, हमें प्रिकॉशन क्या करनी है, हमें प्रिवेंशन क्या करनी है, क्या चीजें हमें नहीं करनी है, अपनी मिस्टेक से सीखते भी हैं। व्हाट कॉज्ड दोज थिंग्स, किसी के साथ थेफ्ट हुआ है, किसी के साथ यू कैन से कोई मिस हैपनिंग हुई है, किसी के, ये कोविड का भी आया था, क्यों हो पा रहा था, we were not, you can say, हम लोग इतने ज्यादा प्रिकॉशंस भी नहीं ले रहे थे एट द वेरी इनिशियल स्टेज। जब वो स्प्रेडिंग स्टार्ट हुई, हमने सोचा फिर क्या हुआ, थोड़ी सी हुई है, अब हमारे तक तो नहीं आएगी, दैट माइंडसेट है ना। प्रिकॉशन, प्रिवेंशन, ये चीजों पे डिस्कस ही नहीं किया किसी ने। उसके बाद आयुष का पॉइंट वाज गुड, देन इट वाज शिवम योर पॉइंट वाज दैट मोटिवेशन इज नीडेड। हाँ, इसी चीज को यू रेज्ड अ वेरी गुड डायमेंशन कि किस तरह से हम टफ टाइम पे डील कर सकते हैं। You have to speak it like that for you can say dealing with tough times a person requires motivation, and their motivation can come from your peers, आपके friends आपको motivate कर सकते हैं, आपकी family आपको motivate कर सकते हैं। content motivation का ही था और उसको change करके बोल देते थोड़ा, that is fine। first time के लिए I am skipping it out कि पहला time दूसरा time अभी चल रहा है, तो it is okay। पर धीरे धीरे improvements आनी भी चाहिए, ये ना हो कि अब रोज ही गलतियां। मैम मेरा तो फर्स्ट टाइम है आज। it is okay, कल देख लेंगे कितनी improvement आती है, ठीक है। Okay, Alok was there. Sarah, it changes your perception. That was point. Simple and short. It was a good point. Then it was Aruna. Aruna ने फिर वही personally का किया था. It makes me prepared for it. राहुल का सोचने का तरीका का था. That is already a point which was started by Alok. He did not target it at right time. Then Aruna targeted, I think, spiritual things का target किया था. Aruna ने किया था, right? Yes, ma'am. Spiritual मैंने भी करा किया था था मैम। spiritual। Yeah, you started and then I think Aruna. नहीं, भगवत गीता मैंने बोला। जहाँ भगवत गीता आपका था। तेरे नंबर किसी और ने ले लिया भाई। भगवत गीता एंड ऑल दैट, ये नहीं बताना कि सीधा भगवत गीता पे चले जाते हैं हम। ये होता है कि हाउ टू कोप अप कैसे कर सकते हैं, कि पर्सन के अंदर इमोशनली, जैसे मैंने बोला कि शिवा में बड़ा मोटिवेशन नहीं चाहिए, तो मोटिवेशन डेवलप होनी चाहिए, पेरेंट्स से आने चाहिए। स्पिरिचुअल कंसंट्रेशन, ये चीजों के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि क्या कि हमारा स्पिरिचुअल लेवल बहुत स्ट्रांग हो सके, मेंटल लेवल स्ट्रांग हो सके। वी गाइस आर नॉट मेंटली दैट मच वीक हो जाता है, वी गेट इमोशनली ड्रेन्ड आउट, रोने लग पड़ते हैं। रोने भी नहीं लगते तो अपने अंदर इतना इकट्ठा कर देते हैं कि समटाइम एंगर बस्ट अप होता है। आजकल इफ आई आस्क यू एवरी वन ऑफ यू ना कोई मुझे प्रॉब्लम या वीकनेस बता दो, इमोशनल वीकनेस, एक एंगर या बोलोगे इमोशनल अनस्टेबिलिटी, ये किसी ना किसी के अंदर जरूर होगा। रोना बहुत जल्दी आ जाता है, लड़ते लड़ते रो पड़ते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे चीजें आप में रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये सारा क्या है, ये इमोशनली यू गाइज आर नॉट हेल्दी राइट नाउ and you're not preparing, and even we do not prepare। जो लोग yoga and all that meditation में जाते हैं, they already prepare themselves, they're so much one sided कि अपने आप को handle कर देते हैं कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, right? तो that is something, कोई बोला ना प्रिवेंशन या क्योर किस किस तरह से करते हैं, ठीक है।
इस चीज पे जाते रनिंग भी एक्चुअली ना रनिंग भी कर सकते हैं, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। इट पॉइंट यू कुड राइट इट आउट कि जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है ना, इवन इफ यू गो फॉर फिजिकल एक्टिविटी, आपकी एनर्जी साइड पे, प्रोडक्टिव साइड पे लगती है। दैट इज व्हाट इट्स नॉट कि आप फिजिकल एक्टिविटी से स्ट्रांग हो जाते हो। फिजिकल एक्टिविटीज आपको क्या करती हैं, आपके माइंडसेट को एनर्जाइज करती हैं, या आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो, एंड यू आर नॉट एबल टू थिंक। जैसे अगर मैंने, आई थिंक yesterday I gave the topic और I don't remember it out, an idle mind is devil's workshop। खाली घर क्या होता है, खाली जब आपका दिमाग होता है शैतान का घर होता है। दिस इज द स्टेटमेंट एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक। हाँ, किस तरह से प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाते हैं हम, अच्छी चीजें नहीं, हम पास्ट की चीजों को सोच के ही लड़ते रहेंगे, पास्ट में ये हो गया था मेरे साथ, एंड यू स्टार्ट क्राइंग विदाउट एनी रीजन। दिस एक्चुअली हैपेंस, या कुछ गलत चीजों पे चले जाते हो। So see, feedback for each one of you. Now I'm speaking again. Think carefully and improve it out. आयुष, कॉन्फिडेंस है, बोल सकते हो, लेवल है, पर इनफॉर्मल नहीं जाना है। योर कंटेंट गेट्स वेरी इनफॉर्मल, इट्स अ फॉर्मल इंटरव्यू, फॉर्मल जीडी। पॉइंट्स बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट रखने हैं और शॉर्ट रखने हैं, ठीक है। क्रूशियल, स्पीक मोर। जैसे आपने कंक्लूड भी किया, कंक्लूजन कुड बी वे बेटर दैट यस एवरीवन हैड अ वेरी हेल्दी डिस्कशन एंड वी थिंक वी सपोर्ट दिस आर्गुमेंट। This tough time can be dealt with, you can say it can come on any person, and the person needs to be emotionally, spiritually, mentally strong the way he progresses. And we have even discussed, आपने एक और चीज अगर डिस्कस की होगी, that motivation, these things can actually help person go from tough times। इस तरह से कि क्या हुआ है, क्या मतलब था, क्या डिस्कशन की, और हमने इसका क्या, एक होता है ना सिट्टा निकालना, रिजल्ट निकालना। आप लोगों ने तो रिजल्ट निकालना ही नहीं, वैसे भी तो अपनी तरफ से बोल देते हैं, ठीक है। ये होता है पूरा डिस्कशन। Aruna, it was first, it's okay, but right now confidence is low. Secondly, personally नहीं लेना हर स्टेटमेंट को, पर्सनल नहीं बोलना है। लास्ट, ज्यादा पार्टिसिपेशन करो, ओके। शिवम, whenever there is a right time to speak, मतलब सबका सुना करो अटेंटिवली, उस टाइम पे टारगेट करा करो, नॉट लेटर ऑन। सेम फॉर राहुल, लेटर ऑन टारगेट नहीं करना, सेम सपोर्ट इट आउट, इतना अटेंटिव हो जाओ कि कौन क्या बोल रहा है और मेरे को उस टाइम पे कट करना है। यू हैव वेन इट आउट, ये नहीं है दूसरों को चांस देना है, ये दिन की मैं कैसे जीत सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीजों को सपोर्ट करो, अपने पॉइंट्स को थोड़ा शॉर्टर और थोड़ा आप में भी आई वांटेड फॉर्मलाइज हो गए, पॉइंट्स को जैसे रखते हो ना थोड़ा और फॉर्मल। जैसे अब राहुल, यू स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग अ पॉइंट, एक्सप्लेन नहीं करना, मैं बताओ कहना के साथ, जैसे सोचने का तरीका बदल रहा है, बोलो ना सीधा, आउट ऑफ थिंकिंग है, ठीक है। और वी स्टार्ट थिंकिंग विद द गुड पर्सपेक्टिव, टेक्नोलॉजी का कुछ उठा रहे हो। शिवम, पॉइंटर्स कुछ बीच में अच्छे थे, पर वही हो जाता है, वे डाउन हो जाते हैं। अगर एक नेगेटिव आ जाएगा, एक अच्छा आ जाएगा, तो वो नेगेटिव वाला भी इक्वल, वो बैलेंस हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। सारा, यू हैव गुड कॉन्फिडेंस, यू स्पीक इवन, बट वही चीज है, अपने कंटेंट को शॉर्ट, पॉलिशिंग, और सेम वे आई से टारगेट एट राइट टाइम, सपोर्ट करो एक दूसरे को, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही होगा। This was a proverbial one we did, and your is now I'm closing it out. ये चीज को थोड़ा practice करना, and the statement which I told you, an idle mind is devil's workshop. इस पे अगर आपने नहीं practice किया था, and I don't think so, आप में से किसी ने भी practice किया होगा इस पे, ठीक है। How an idle mind is devil's workshop, किस तरह से है, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं, हम improve कैसे कर सकते हैं, क्या चीजें हम सोचते हैं, आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हो। लोग आई थिंक गलत कामों के बारे में चले जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी। व्हेन यू नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, यू गो फॉर रॉन्ग डायरेक्शंस, कुछ ना कुछ मीन या रॉन्ग यूसेज कर सकते हो। ये चीज पे जाओ, सोचो कि मैं क्या क्या बोल सकता हूँ। वी विल सून बी डूइंग दिस, जो मैं आपको घर पे दे रही हूँ उसकी 6 मिनट्स डिस्कशन करा करेंगे, और रेस्ट ऑफ द डिस्कशन विल बी ऑन अ न्यू टॉपिक, ताकि आपका खुद का भी ब्रेनस्टॉर्म हो सके और आप वैसे भी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। टुमारो इन द इवनिंग विल मीट, ओके। चलो, टाइमिंग फॉर टुमारो, I'll drop in the group only. In the evening it would be most probably at 7-8, but I'll tell you. Okay, chalo. All the best and take care, guys. Thank you. Thank you.